मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now, please notice the smile on his face, and please notice the word Vyavastha. What exactly is the Vyavastha that the Chief Minister of Haryana is talking about? This is 2 days after the election, when everybody is saying that the Congress party is sweeping the election, when every indicator is that the Congress party is going to win. All the polls, all the exit polls are saying it, and this gentleman is very sure and is smiling that the BJP has some Vyavastha that is going to show itself. So now, let's go to the proof. Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहाँ की लगती हैं? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana, and she votes in 10 different booths in Haryana, and she's got multiple names: Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. So last guesses. I'm going to give a prize if anybody can guess this. Anybody? She's from Brazil. She's a Brazilian model. That's a stock photograph, and she is one of 25 lakh such records in Haryana. She appears 223 times. ये सब 104 में रह रहे हैं, आप देखिए, ये सब 104, 103, 104, 103 मकान में रह रहे हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये किस चीज की लिस्ट है? ये किस लेवल की लिस्ट है? ये हरियाणा की लेवल की लिस्ट है, असेंबली की लिस्ट है, किस चीज की लिस्ट है? ये दो पोलिंग बूथ्स की लिस्ट है। She appears 223 times in 2 polling booths. She can vote any amount of times she wants. Election Commission has the data on how many times she voted. We have a sense of it. Election Commission needs to tell us how many times this lady, whose name we don't know, whose age we don't know, but we know she occurs 223 times in 2 booths. In the Lok Sabha election, she was there 223 times in 1 booth. And then they decided to split it into 2 booths. बात है सुबह 5 नवंबर की, जब राहुल गांधी दिल्ली के कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खड़े हुए। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में वोट चोरी हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुरंत राजनीति की दिशा बदल दी। राहुल गांधी बोले, ये सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का सवाल है। चलिए इसके पीछे हम पूरी कहानी जान लेते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, और इससे मोदी सरकार और हरियाणा आने वाले समय में किस तरह से प्रभावित होगा। हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सरकार बनी, लेकिन राहुल गांधी ने दावा किया है कि सिर्फ परिणाम नहीं बल्कि मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट फेक वोटर से भरी हुई है। She appears 223 times. ये सब 104 में रह रहे हैं, आप देखिए, ये सब 104, 103, 104, 103 मकान में रह रहे हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये किस चीज की लिस्ट है? ये किस लेवल की लिस्ट है? ये हरियाणा की लेवल की लिस्ट है, असेंबली की लिस्ट है, किस चीज की लिस्ट है? ये 2 पोलिंग बूथ्स की लिस्ट है। She appears 223 times in 2 polling booths. She can vote any amount of times she wants. Election Commission has the data on how many times she voted. We have a sense of it. Election Commission needs to tell us how many times this lady, whose name we don't know, whose age we don't know, but we know she occurs 223 times in 2 booths. In the Lok Sabha election, she was there 223 times in 1 booth. And then they decided to split it into 2 booths. राहुल गांधी का कहना है कि हरियाणा में लगभग 25 लाख वोट नकली हैं। अभी तक तो हम बिहार में लगभग 10 अभी 15 लाख के आसपास नकली वोटों के बारे में सुनते आ रहे थे, लेकिन हरियाणा में अब इस वोटर लिस्ट में कहां-कहां गड़बड़ी बता रहे हैं वो जानना जरूरी है। सबसे पहले तो हमें जान लेते हैं कि राहुल गांधी ने क्या-क्या दावे किए हैं इस कॉन्फ्रेंस में। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि हरियाणा में कुल लगभग 2 करोड़ वोटर थे। इनमें से करीब 12 से 13% यानी 25 लाख एंट्रियां संदिग्ध थी, यानी 25 लाख वोटर सस्पिशियस थे। जैसे कि हरियाणा में एक महिला की फोटो वोटर लिस्ट में 22 बार अलग अलग नाम से दर्ज हुई थी, जिसने हरियाणा में 10 अलग अलग बूथ पर वोट दिया था। 25 lakh vote chori in Haryana, 5 categories. Duplicate voters, 5,21,000. Invalid addresses, 93,000. Bulk voters, 19 lakhs. And notice that we've left those 2 empty, misuse of Form 6 and Form 7. The reason is that the EC now no longer allows us to access it. After Mahadevpura, where we accessed Form 6, they have stopped it. अब सुनिए, यहाँ से कहानी और भी अजीब मोड़ ले लेती है। आप सुन के हैरान हो जाओगे कि राहुल गांधी ने जिस महिला की फोटो का जिक्र किया था वो कोई भारतीय नहीं बल्कि ब्राजील की एक मॉडल लारिसा नेरी थी। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दावा किया था कि उसकी वही तस्वीर हरियाणा में वोटर लिस्ट में 22 बार अलग अलग नामों के साथ दिखाई थी, और फिर यहीं से सोशल मीडिया पर लारिसा नेरी का चेहरा वायरल हो गया। Let's go to the proof. Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहाँ की लगती हैं? Anybody? Goa?
Maharashtra, North. Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. So last guesses, I'm going to give a prize if anybody can guess this. Anybody? She's from Brazil. She's a Brazilian model. That's a stock photograph. And she's one of 25 lakh such records in Haryana. वायरल होते ही लारिसा ने खुद एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो थोड़ी हैरान और गुस्से में दिख रही थी, जिसमें वो पुर्तगाली यानी पोर्चुगीज भाषा में बोलती हैं, जिसका ट्रांसलेशन है ये। Gente, contar pra vocês uma fofoca, vocês vão rir demais. Não, vou contar fofoca. Gente, estão usando uma foto minha, antiga. A foto é velha, tá? Ó, tava novinha na foto, devia ter uns 20 anos, 18 anos. Estão usando a foto minha pra fazer, eu não sei se é uma eleição, alguma coisa de voto que tem que votar. E na Índia. Estão me colocando como indiana pra dar golpe nos outros, gente. Olha que loucura. Que doideira é essa? Que mundo nós estamos vivendo? Aí um repórter me chamou, querendo saber sobre esse trem, ligou lá no salão do meu emprego, querendo conversar comigo pra entrevista. Aí eu não respondi. Falei pra Tatá não passar meu número e tal. Aí o cara achou meu Instagram, me chamou no Instagram. Agora uma outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto, uma amiga minha de outra cidade, me manda uma foto. Vou colocar aqui pra vocês, aqui embaixo pra vocês verem. Aqui. Vocês não vão acreditar. Ô, gente. लालिसा नेरी कहती हैं, दोस्तों वो मेरी बहुत पुरानी फोटो है। मैं तब लगभग 18 या 20 साल की थी। अब लोग उस फोटो का इस्तेमाल भारत में कर रहे हैं और मुझे किसी इंडियन महिला की तरह दिखा रहे हैं। आखिर ये क्या पागलपन है कि इस दुनिया में हम जी रहे हैं। लालिसा ने अपने वीडियो में ये भी साफ किया कि उसका भारत से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो बल्कि कभी भारत आई तक नहीं, और न ही उसे पता था कि उसकी फोटो कैसे किसी वोट चोरी वाली बहस तक पहुंच गई। उसने कहा कि ये पूरी घटना उसके लिए शॉकिंग है क्योंकि ये उसकी पहचान और निजता का वॉयलेशन है। अब जरा सोचिए, एक ब्राजील की लड़की जो शायद अपने देश में मॉडलिंग कर रही थी, उसकी तस्वीर यहाँ भारत की वोटर लिस्ट में किसी भारतीय महिला के नाम से इस्तेमाल होती है। हैरानी की बात यह है कि ब्राजील की लड़की की वही तस्वीर हरियाणा की वोटर लिस्ट में कभी रीना देवी, कभी सुनीता, कभी कविता, कभी पूजा और सीमा जैसे अलग अलग नाम के साथ 22 बार ऐड की गई थी। और फिर उसे खुद सोशल मीडिया पर आकर सफाई देनी पड़ती है कि भाई मैं तो इंडियन भी नहीं हूँ। आप सोच के देखिए, अगर एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो हमारे वोटर रोल में दर्ज हो सकती है तो बाकी कितनी गड़बड़ हो सकती है। ये दिखाता है कि अगर राहुल गांधी का दावा सही है तो ये मामला सिर्फ वोट चोरी का नहीं बल्कि डेटा और इमेज चोरी का भी है। राहुल गांधी ने दावा किया कि यह सिर्फ एक बूथ स्तर की समस्या नहीं थी बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन के रूप में हुआ था। राहुल गांधी का कहना है कि वोटिंग के पहले से तैयार अरेंजमेंट था, मतलब अपोजिशन की जीत को हार में बदला गया। And she is one of 25 lakh such records. This is proof of a centralized operation. I'm going to show you. If you just scan that, this opens. That's her official page. राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया में गंभीर परेशानी आई है और जनता को पता होना चाहिए। ये टाइम भी दिलचस्प था क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने उस समय रखा जब बिहार में विधानसभा चुनाव की फेज होने वाली थी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ हरियाणा का मामला नहीं है बल्कि आने वाले चुनावों का रेफरेंस पॉइंट है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसी ने इन दावों पर क्या कहा। इलेक्शन कमीशन ने फिलहाल अस्थिर या अनसर्टिफाइड कहा है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ने बूथ एजेंट्स के माध्यम से ऐसे आरोप पहले क्यों नहीं उठाए। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के आरोपों को पॉलिटिकल मोटिवेशन वाला बताया और ध्यान हटाने की कोशिश कहा गया। कांग्रेस ने इसके बाद हरियाणा में मोर्चा खोलने की बात कही है और जनता को जागरूक करने का दायित्व लिया है। अगर दावे सही साबित हुए तो ये केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, सीमित प्रक्रिया और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता के लिए बड़ा झटका होगा। नरेंद्र मोदी की राजनीति पर असर हो सकता है क्योंकि ये सवाल उठा रहा है कि क्या सत्ता के समीप स्वतंत्र संस्थाएं निष्पक्ष रह सकती हैं। हरियाणा में अगली बार चुनाव रणनीति वोटर रजिस्ट्रेशन मतदाता जागरूकता की दिशा बदल सकती है। विपक्ष इसे एक अभियान में बदल सकता है। वोट चोरी, लोकतंत्र संकट जैसे नारे प्रचार में बदल सकते हैं। चैनल युवा वर्ग यानी जेन जी को निशाना बनाया गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये तुम्हारा भविष्य है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक ये दावे साबित नहीं हुए हैं। जब एक बड़े लोकतंत्र राज्य में वोट चोरी जैसे शब्द सामने आ रहा हो तो ये सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि हमारे हर दिन के वोट, हमारी आवाज, हमारी सरकार के आगे सवाल है। यदि पुराने नियम, प्रक्रिया, मतदाता सूचियां और संस्था ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम पूछें, देखें और सच माने। और आखिर में चाहे आप इस दावे को माने या ना माने, वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आंकड़े देना नहीं था बल्कि सवाल उठाना है, क्या हमारी वोटिंग प्रक्रिया अब भी सुरक्षित है।